आप कहाँ के लिए निकले हैं? बधाइयों के लिए निकले सर। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से सर 150 किलोमीटर। अगर गाड़ी नहीं मिली तो भाभी जी आप क्या 150 किलोमीटर चल के जाएंगे? क्या करेंगे सर? बैठ के जाएंगे सर। बैठ क्या बैठ करें, के 2 दिन में पहुंचेंगे, 3 दिन में पहुंचेंगे। पहुँचना पड़ेगा। अच्छा, तो आप यही आप नोएडा में नौकरी कर रहे थे ना? क्या काम हाँ जी, करते हैं? राजगिरी राजगीर मिस्त्री थे ना? तो आप जी। नोएडा में क्यों नहीं रुक गए? कहाँ रुके सर? मकान मालिक रुकने नहीं दे रहे हैं, क्या करें? अच्छा, क्या बोल रहे हैं मकान वाले? मकान मालिक ये बोल रहे हैं किराया चढ़ेगा आप पे। कब हाँ। तक किराया चढ़ाएंगे? काम 1 महीने बंद है। अच्छा, और खाना पीना का क्या है? खाना बच्चों के वाना लिए का दूध वगैरह? कुछ भी नहीं है सर, भूखे यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो सफ़र है ये इजी नहीं, एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ये बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए शायद इसको द लॉन्गेस्ट मार्च इन इंडिया कहा जा रहा है। लोग मजबूरी में चल रहे हैं अपने घरों की तरफ। कहाँ जा रहे हो? जौनपुर। जौनपुर। अच्छा, कितना किलोमीटर है भैया यहाँ से? 700 किलोमीटर। कितना? 700। 700 किलोमीटर। जी तो 700 किलोमीटर तक कैसे जाएंगे? सर, देखेंगे रास्ता में, अगर गाड़ी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो पैदल जाएंगे। भैया एक चीज़ बताओ, आपको कितना टाइम लगेगा बनारस तक पहुँचते पहुँचते? लग जाएगा 10 दिन। जेब में पैसे वैसे हैं? नहीं है, नहीं है। नहीं है। ये यहाँ से आजमगढ़ तक चल के जाएंगे। और यहाँ से आजमगढ़ का रास्ता कितने किलोमीटर का है? 8 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। ये बोल रहे हैं कि 800 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे। और आप कहाँ, नोएडा से ही निकले अभी? हाँ। Is it time to open India? Is it time to remove the lockdown and let people resume their day-to-day businesses? Or is it high time to extend the lockdown 5.0 from 1st of June 2020? Well, migrants are still on roads, in scorching sun, hungry stomach, with swollen feet. Men, women and children are walking in search for their way to home. Millions of migrants in India were left with no food, money, and were evicted by their landlords. Clearly, they are not happy with what state governments and central government has done so far. As of now, there are 1,39,000 positive cases with 57,721 recovered and 4,000 plus deaths so far. Experts say this number could easily rise up to 22 lakh positive cases by the end of June 2020. Hey guys, I'm your host Muzammil Maqbool and I welcome you to another episode of Plain Talk. In this episode, I have a special guest with me, Justice Scott Chu, who clearly rejects the idea of extension of Lockdown 5.0 and is continuously requesting the central government to reopen entire India as soon as possible with a national emergency government in force. Thank you so much, sir, for being with me on Plain Talk. It's really an honor to have you on my podcast. My pleasure. Sir, my question is very simple. The first question goes as, I totally understand migrants are on the roads walking day in and day out, trying to reach their homes. I also understand that they are hungry and without money. It is entirely responsibility of central government as well as the state governments to take care of them. But how does it justify the fact that we all are in dangerous phase of COVID-19 crisis, where experts are saying that cases will rise up to 20 lakhs in next 1 month or two? I don't agree with that at all. Mhm. I don't regard COVID-19 as a big problem for several reasons. Yes. Firstly, if you see the statistics, Hmm. hardly 2 or 3% people who get infected with this COVID-19 die of the disease.
Okay. Rest 97-98% recover. In fact, about 50% people who get it don't even know that they have got it, and it's just like a sort of a small flu, and they recover. Nothing happens to them. Secondly, see, India has had about 3,500 deaths from COVID-19. True. India's population is 4 times larger than USA. We are about 135 crores. They are only 32, 33 crores. True. But they have got about almost 1 lakh deaths by now. We have only 3,500. What does this prove? This proves that we have relative immunity from the disease. We don't get this so much as Americans get it. So it's not such a danger for us. It may be a danger for America, and it may justify lockdown in America, but not in India. Okay. And yes, sir. Yes. And sir, are you satisfied with the test rates going on in the entire country? With what? With the test rates going on in hospitals and elsewhere, with the tests going on regarding coronavirus, are you satisfied with that? See, I have told you this corona is not such a danger. People have made it out as if it is a very great danger. In fact, I've written an article, if you see, it has been published in Naya.TV and also in some other publications. It is called the balanced approach should be taken to deal with COVID-19. You can see it on Naya.TV. And this I wrote just a couple of days back. And earlier in February, I wrote an article which was also published in Naya.TV, in which I said this is not such a big danger as people have made it out to be. In fact, many more people die of TB and flu and malaria and dengue. Many more people die of that. No, but nobody talks about that. Absolutely. Only talk is of corona. As if this is the only. In fact, many more people will die of hunger because of this lockdown. What has happened is that 80-90% of our workforce in India were these daily wage employees or these migrant employees who used to work every day and earn a little money every day, and now their livelihood is gone because of this lockdown. Absolutely. So what had happened was that India had a population of about 40 crores in 1947. This was United India, which included Pakistan and Bangladesh. And Bangladesh as well. 40 crores. Today, India alone has about 135 crores. And in 1947, about 15% people lived in cities and 85% people lived in villages. True. Today, about 35-40% people in India live in cities and 60-65% live in villages. True. So there has been mass migration from the rural areas to the urban areas. Okay. Because there was no livelihood, there was nothing to do in the village. So to earn some money, people migrated from the villages to the cities. Now you are sending them back to the villages. But what will they do there? There is nothing to do for them. At least in the cities, they were earning a little money and sending it to the village, to their families. True. Now you are sending them back to the village, but there's no work for them. So they will starve. I mean, there should have been some planning, before taking such a big step like a lockdown. The Prime Minister should have held wide consultations with experts and wide discussions with a large number of people. Only then such a big decision could have been taken. Because after all, what is a lockdown? It means the whole country has been brought to a standstill. Whole economy has been brought to a standstill. Absolutely. Now, before taking such a big decision, there should have been wide consultation. But our Prime Minister, he takes, hasty decisions, like he took about demonetization. That was also taken in a huff, suddenly, to show that I am a very strong man. But showing that you're a strong man is not enough. You should hold wide deliberations with a large number of people, scientific experts, economists, and this and that. Then only such a decision should be taken. On 24th March at 8:30 p.m., this decision for lockdown was taken. And lockdown to begin from midnight the same day. Only 3.5 hours notice was given to people. True. Now what is the result? Crores of people are walking Jobless, around on the without streets, food,
Absolutely. jobless. So this was a very wrong decision. There should not have been any lockdown. Yes. As I told you, not this. Indians are largely immune from this relative to say Americans. That's what the figures show. I totally understand, sir. And only 2-3% people die of it. So what I have suggested is that a national government should be now formed because the problems are too big for Mr. Modi to handle alone. ये जो problems आ गए हैं कंट्री के सामने ये बहुत बड़े हैं, ये इनसे नहीं संभल पा रहा है. अब एक नेशनल जैसे विंस्टन चर्चिल ने बनाई थी in May 1940 जब ये हिटलर के इन्वेजन का खतरा आ गया था. That's what my next question is, sir. I was about to go to that question as well. You have been very vocal on pushing Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to follow the example of Israel in forming a national government. But do you Israel and Churchill also? Yes, absolutely. It has been done in the past. But do you think it's possible in a political demography like India, where opposition is not only seen as opposition but rival as well, and if at all it happens, somewhere down the line, do you think it will be a successful, national government? It is inevitable. You see, there were differences between the Conservative and Labour parties in 1940. So there were differences between them also. But when the big danger came, that was the threat of Nazi invasion, then they united and they forgot their differences. Similarly, in Israel, what has happened is they have formed a national government last Sunday, and the Prime Minister Benjamin Netanyahu, he will be now Prime Minister for 18 months. And the leader of the opposition Benny Gantz, will be the next Prime Minister for next 18 months. So the opposition has also joined the government. In England, from May 1940 to May 1945, for 5 years there was no opposition in the British Parliament. Absolutely. Because the opposition had joined the government. So similarly, the whole nation must unite now. We must all come together, all parties, political parties, and then scientists and economists, industrialists, and even media people should be taken into the government. A united effort has to be made because the very huge problems have come before the country. The economy is sinking, totally collapsing. Even before lockdown, the economy had tanked. More than 40% of the employees in the auto sector had been laid off. True. And there were massive layoffs everywhere. Now this lockdown has in fact even pushed it further down. Yes. What was already going down, it has been pushed further down. It is spiraling downward. Without any doubt. Unless a national government is formed, we are doomed. This country is doomed because there will be large-scale food riots and law and order will collapse. Chaotic conditions will come in. So national government is absolutely essential. And what do we expect from this national government? If you could narrate it in couple of points, the main points, bullet points. What do we expect? I'm answering you. I cannot say what they will decide. I'm not an expert. But what I do know is that when a large number of people come together and they apply a mind, then, as it is said, two heads are better than one. Absolutely. Alone, Mr. Modi cannot solve this problem. They are too big for him. So, a large number of people, including experts, scientific experts, economists, and industrialists, administrators, they have to find out the solution, not only to this COVID, because COVID-19 I don't regard a big problem. More important is this economic crisis. Yes. Economy is collapsing. But there's massive unemployment. It is getting worse. Industries are closing down. So when all these people get together, then by mutual discussions, they will find out some way. True. Justice Karjo साहब, अब मेरा एक important सवाल आपसे है. Coming back to Kashmir now, this is very, very important question to me, and I know you track Kashmir. You have written a lot about Kashmir. People who were CMs here, जो यहाँ पे अभी तक CMs बने हैं past में, तो उनकी एक तरफ से parachute landing हुई थी. They were a sort of chosen by Union Government of India. But how do you see this idea working in Kashmir when you say
that Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, should make Shah Faisal a CM as soon as possible of Jammu and Kashmir and should restore statehood. Well, statehood is fine. I don't disagree with that. But how do you see this idea working when people have zero acceptance for those candidates who were chosen in the past by the Union Government of India? देखिए, before I answer that question, let me say one thing. That no Indian government can survive if it grants आजादी to Kashmir. Okay. इस पे जितना भी खून खराबा हो जाए, कभी नहीं ग्रांट होगी आप लोगों को आजादी. Okay. जितने भी लोग मारे जाएं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया इज हार्डन्ड. Okay. एक समझ लीजिए, कोई ना बीजेपी गवर्नमेंट सरवाइव कर पाएगी, ना कांग्रेस, ना कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सरवाइव कर पाएगी इफ इट ग्रांट्स आजादी टू कश्मीर. कभी नहीं ग्रांट होगा आपको, जितना भी खून खराबा हो. सो ये प्लीज रिमेम्बर दिस, क्योंकि आप लोग लाइक पैरेट्स यू कीप शाउट आजादी आजादी, कभी कभी नहीं मिलेगी, कोई नहीं दे सकता आपको. जितनी भी गोलियां चलें, जो भी खून खराबा हो, इतना अकल आनी चाहिए आप लोगों को. दूसरी चीज आप समझना चाहिए कि देखिए, ये अक्सर जब मैंने ये शाह फैजल की बात कही फॉर बीइंग चीफ मिनिस्टर, कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि चीफ मिनिस्टर तो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होना चाहिए. Yes, that's what my point is. Yes. अरे, I am answering you if you have the patience Yes, to hear me. yes, sir. Please have go some ahead. patience. I am Sir. just answering you. Sir. Many people have criticized me that chief minister तो democratically elect होना चाहिए. Why? How can he be selected and imposed? मैंने जवाब दिया, देखो, conditions in Kashmir are such that people's voice has been silenced. People are not able to express their opinion. True. So somebody on behalf of the Kashmiri people must express their opinion. And I, being a genuine well-wisher of Kashmiris, being a Kashmiri myself, I am representing the Kashmiri people. I have elected Shah Faisal as the chief minister on behalf of the Kashmiri people, because Kashmiri people are not in a position to express their opinion. So I am expressing opinion on their behalf, and I will tell you why I said Shah Faisal is the right person. देखिए, एक तो जो प्रीवियस ये जो अब्दुल्ला और मुफ्ती वगैरह हैं, इनकी इमेज खराब है बहुत. इन लोगों ने करप्शन किया. They have no credibility among the Kashmiri public. You know, Sheikh Abdullah ने लूट लिया पूरा कश्मीर को. Posing to be a great champion of Kashmiris, he and his family have looted Kashmir. और यही मुफ्तीज का हाल है और इन लोगों का हाल. As compared to them, Shah Faisal has a clean image. शाह फैजल के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इसने कोई रिश्वतखोरी करी, कोई चोरी करी. रादर ही इज अ सेल्फ मेड मैन. ये मेडिकल डॉक्टर था, आईएएस में बैठा, मेहनत किया, आईएएस में आ गया, एंड ही वाज जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट द किलिंग्स ऑफ कश्मीरीज. आई एम आल्सो कंसर्न्ड. I have also criticized the Indian security forces for killing so many, of course, many terrorists were also killed, but some innocents were also killed, which I have strongly condemned. And on that I also agree with Shah Faisal कि ये गलत, किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए, ना हिंदू पे जुल्म होना चाहिए, ना मुस्लिम पे, ना सिख पे, किसी पे जुल्म, हर जुल्म के मैं खिलाफ हूँ. तो ये भी बात है कि कश्मीरी पंडितों पे भी जुल्म हुआ और कश्मीरी मुसलमानों पे भी जुल्म हुआ. कश्मीरी मुसलमानों पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी बहुत जुल्म किया. इसमें कोई डर, तो देयर आई कैन अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स. व्हाई ही इज अ यंग मैन, तो नेचुरली यंग मैन में ज्यादा इमोशनल होता है. ही रिजाइंड ऑन दैट एंड ही वांट्स टू सर्व द कश्मीरी पीपल. इसकी इमेज अच्छी है. देखिए, और बताइए कौन क्या ऑल्टरनेटिव है? कोई आपको दिखाई देता है जिसकी इतनी अच्छी इमेज है? मैन हु इज अ क्लीन रेपुटेशन. आईएएस की अच्छी नौकरी थी, छोड़ दी उसने बिकॉज ही फेल्ट कि कश्मीरी पीपल पे जुल्म हो रहा है. I can understand his feeling. Mr. Kaju, that is again a very big debatable topic. When you say कि कौन alternative है, आप बताइए, आप ही बताइए, आपको दिखाई दे रहा कोई? देखिए, जो अरे भाई सुनिए, मेरी बात रुकिए, मेरी बात सुनिए जी सर. देखिए, पहली चीज एक चीज समझ लीजिए. मैं कश्मीरियों से कई बार मैंने कहा है कि देखो, एक दो चीजें तुम्हें समझनी चाहिए. आजादी इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ. Azadi is only a means to an end. The end has to be raising the standard of living of the people, which means giving people better lives. अगर आजादी से कश्मीरियों की जिंदगी बेहतर हो जाती है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, ऐसे आजादी को सपोर्ट करूंगा. मगर आप साबित करिए, प्रूव इट टू मी.
मैं प्रूव कर दूंगा कि आजादी से आपकी जिंदगी और बदतर हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी जो आपके जो लीडर्स हैं, हुर्रियत के लीडर्स और मिलिटेंट लीडर, इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, विच इज नॉनसेंस। इसका मतलब अगर कश्मीर आजाद हो जाए इनके लीडरशिप में, तो ये शरिया लॉ इम्पोज कर देंगे, औरतों को बुर्का कंपलसरी कर देंगे, ये सब नॉनसेंस शुरू हो जाएगा, एंड कश्मीर विल बी थ्रोन बैक इनटू द मिडिल एजेस। Islamic fundamentalism is humbug. We have to go forward into the modern scientific age, not backward into Islamic nonsense. तो ये जो लीडर्स हैं, इनका क्या आइडियोलॉजी? ये जो सैयद अहमद शाह जिलानी वगैरह, इनको कोई अकल है? खुद तो इनके सारे रिश्तेदार रहते हैं अमेरिका में, यूरोप में, और कहाँ कंफर्टेबल लाइफ। इनके जो मैंने पढ़ा है, इनके जो औलाद हैं, रिश्तेदार हैं, दे आर लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज कंफर्टेबली, और ये भाषण देते हैं कश्मीरियों को कि अपनी जान दो। ये दे आर नॉट द राइट टाइप ऑफ पीपल टू बी लीडर्स ऑफ कश्मीरी। द लीडर्स हैव टू बी मॉडर्न माइंडेड पीपल, जो कश्मीर को आगे ले जाए। मगर ये तो पीछे बैकवर्ड इनटू द मिडिल एजेस ले जाएंगे। इनकी आइडियोलॉजी। That's what my point is. दूसरी चीज सुनिए, दूसरी चीज, अरे भाई सुनो यार। जी सर। दूसरी चीज मैंने कहा कि देखो, तुम लोग अकल का इस्तेमाल करो, तोते जैसे आजादी आजादी बोलते जाते हो। तुम पहले ये याद रखो कि कश्मीर में देयर इज अ मैसिव हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये शॉल्स, कारपेट वगैरह मैसिव इंडस्ट्री है, और इसका जो ह्यूज मार्केट है, दैट इज इन द टाउन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में सैकड़ों शहर हैं। I went right up to deep south in Kerala, जो त्रिवेंद्रम जो कैपिटल है, और उसके पास कोवलम बीच है। वहां मैं गया, वहां 2-3 कश्मीरियों की दुकानें थी जो कश्मीर से अपना माल लाते हैं, शॉल्स, कारपेट वगैरह, हैंडीक्राफ्ट, और वहां बेचते हैं। हाँ, मेरी वाइफ तो कश्मीरी बोलती है, मैं तो नहीं जानता, मगर मेरी वाइफ जानती है, तो उनसे कश्मीरी में बात किया तो दे वर वेरी हैप्पी। तो अच्छा, वेस्ट बंगाल आप चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, कहीं इंडिया में चले जाइए, हर शहर में आपको कुछ कश्मीरियों की दुकानें मिलेंगी जो वो माल अपना लाते हैं कश्मीर से और वहां बेचते हैं। अब अगर कश्मीर आजाद हो गया तो कट जाएगा हिंदुस्तान में, देन दे कैन नॉट कम इनटू इंडिया विदाउट अ वीसा, एंड वीसा इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन। तो ये इनका मार्केट खत्म हो जाएगा, एंड देन ये तो बर्बाद हो जाएंगे। बेरोजगारी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो अभी वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। अब उस पर कुछ लोगों ने कहा हम लोग सब नया मार्केट ढूंढ लेंगे पाकिस्तान में, चीन में, ये सब। मैंने कहा देखो, नया मार्केट बनाने में 20 साल लगता है। कोई आप समझते हैं क्या आसानी से आप कोई पाकिस्तान या चाइना में मार्केट कैप्चर कर लेंगे? ऑलरेडी द मार्केट इज कैप्चर्ड बाय अदर फोर्सेस। आप क्या समझते हैं कि ओवरनाइट आपको दूसरा मार्केट मिल जाएगा? लाखों लोग आप बर्बाद हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, बिना सोचे समझे तोते जैसे आजादी आजादी पागलों जैसे चिल्ला रहे हो, अकल का इस्तेमाल करते नहीं हो। सब कुछ समझाए, अच्छी बात तुम्हारे, मैं तो आई एम द वेलविशर ऑफ कश्मीरी, आई एम मशहर में कश्मीरी, ऑल्दो आई एम अ कश्मीरी पंडित। मेरा ब्लड और डीएनए वही है जो आप लोगों का है। वी हैव द सेम ब्लड एंड डीएनए, आई एम योर वेलविशर। तो जो मैं कहता हूँ बात, जो सख्त भी बात अगर लगे, मगर सोचो, तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूँ। अब तुम लोग बिना सोचे समझे पागलों जैसे चिल्लाते रहो। एक तो कोई गवर्नमेंट इंडिया की देगी नहीं, जितना भी खून खराबा हो जाए, और दूसरा इससे तुम्हारा नुकसान होगा। तुम वी विल गो बैक इनटू द मिडिल एजेस, तुम्हारी इंडस्ट्री सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और बल्कि आप समझिए, कश्मीर अगर आजाद हो जाए तो कभी इंडिपेंडेंट रह सकेगा छोटा सा कंट्री? वो पाकिस्तान कैप्चर कर लेगा या चाइना कैप्चर कर लेगा, देन यू विल कम अंडर द जैक बूट। बेवकूफी बात करते हो। अब मैं तभी कश्मीरियों से ज्यादा बात नहीं करता। जब तुम अकल की बात करने को तैयार नहीं हो, बेवकूफी की बात जिद पकड़ लेते हो, तो भैया तुम करो जो कुछ करना। मैं आई विल नॉट टॉक टू फूल्स। You most of you behave like fools and I have no time for fools. अकल की बात करनी है, जो मैं बात कह रहा हूँ, बताओ मेरी बात गलत कहाँ है? If I am wrong, I will accept it. Sir, रीजन मैं हर बात का रीजन देता हूँ, आप अपने रीजन दीजिए। Yes. अब बिना रीजन आजादी पागलों से चिल्ला रहे हो। Sir, I have heard you patiently. Thank you so much for that. Let me put across my question once again. When you say that, what is the modern alternative in Kashmir apart from Shah Faisal? Aren't we jumping to conclusions as of now when we say there is no other alternative? मैंने इस पे कई बार कहा, आपने शायद पढ़ा नहीं है, कि only solution to Kashmir problem
is reunification of India and Pakistan under a secular government, मगर उसमें 10-15 साल लगेगा. Absolutely, sir. अरे उसमें सुनो time यार, लगेगा, but when टाइम लगेगा, तब तक ऐसी चलेगी सिचुएशन, तब तक देखिए, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो लिहाजा ऐसी चलेगी, डिस्टर्ब कंडीशन चलेंगी. मगर ओनली सोल्यूशन टू कश्मीर प्रॉब्लम इज reunification of India and Pakistan under a secular. In fact, we are one country. ये तो पार्टीशन वाज अ बिग फ्रॉड बाय द ब्रिटिश. कंट्री इन द पास्ट. हम लोग एक हैं, अभी भी हम एक मुल्क हैं. जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी थे, 45 साल पार्टीशन रहा, मगर अल्टीमेटली यूनाइट हुए. क्योंकि पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान इज पंजाब, इट इज सिंध, इट इज बलूचिस्तान. ऑल दिस वाज पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम मुगल टाइम्स. हम लोग का कल्चर एक है, हम देखने में एक जैसे हैं. जो किसी पाकिस्तानी से मैं बात करता हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि उसमें मुझ में कोई फर्क है. हिंदुस्तानी में बात करते हैं, देखने में एक जैसे हैं, कल्चर एक जैसा है, हम लोग एक हैं एक्चुअली. ये तो अंग्रेजों ने बेवकूफ बना दिया. दिस पार्टीशन इज अ फ्रॉड, इट इज ओनली अ टेम्पररी सेपरेशन एंड अगेन वी आर बाउंड टू रियूनाइट. और उससे ऑटोमेटिकली कश्मीर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, ये जो कई कश्मीरी लोग कहते हैं कि कश्मीर वॉज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, मैंने कहा तुम लोग ने अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है. कश्मीर वॉज इंडिपेंडेंट ओनली अप टू 1587 when the last independent Kashmiri king Yusuf Shah Chak was deposed by the Mughal Emperor Akbar, and then Kashmir was incorporated into the Mughal Empire. So 1587 के बाद कभी कश्मीर इंडिपेंडेंट नहीं रहा. For some time it passed under Afghan rule and Dogra rule and Sikh rule, and actually even this जो महाराजा हरि सिंह थे, ये नाम के राजा थे, असल तो रूलर थे ब्रिटिश. जैसे जितने प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, महाराजा जोधपुर, महाराजा जयपुर, ये नाम के रूलर से. द रियल पावर वाज द ब्रिटिश, तो इट केम अंडर ब्रिटिश रूल. तो कश्मीर वाज नेवर इंडिपेंडेंट आफ्टर 1587. ये झूठ बोलते हैं कश्मीरी लोग कि हम लोग इंडिपेंडेंट थे. आप लोग सच्ची बात करिए ना, कब तक झूठ बोलते चलेंगे? इसीलिए दिक्कत होती है. आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, कुछ पढ़ा नहीं है, बेवकूफी जैसे बातें करते रहते हो. Thank you so much, sir. I respect your views, but I have to disagree here when you say that there is no other alternative on the ground in Kashmir. अरे भैया, तो बताओ क्या अल्टरनेटिव है? बताओ क्या अल्टरनेटिव है? Sir, that's how Indian government has नहीं, defined. आप लोग देखिए, सुनिए, आप लोग देखिए, आप लोग कहते हैं कि अल्टरनेटिव है कि रेफरेंडम कराओ, हमको आजाद. No, sir. I'm not talking about that. I'm not talking about that. I'm totally talking about I'm talking about elections right now, and I'm talking about free and fair electoral process. Wherein people will choose their own candidate. Apart from, it may be Shah Faisal or it may not. That's what my point is right now, sir. भैया तुम बताओ ना, तुमको कोई दिखाई दे रहा है? देखो शाह फैजल, देखो मेरा ये सजेशन है, आपको पसंद आए तो एक्सेप्ट करिए, नहीं पसंद आए मत एक्सेप्ट करिए. या मैं कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा हूँ, मगर मैंने रीजन ये कि शाह फैजल एक तो इसकी बहुत क्लीन इमेज है. किसी ने कभी इसके उंगली नहीं उठाई कि इसने कोई करप्शन किया. ही इज अ यंग मैन, इसमें जोश है कुछ करने का, डिजायर टू वर्क फॉर द पीपल. इसने इतनी अच्छी सर्विस से रिजाइन कर दी. आईएएस से तो एलिट सर्विस मानी जाती है, उससे रिजाइन किया क्योंकि ही फेल्ट कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा. तो इसमें अच्छी क्वालिटी है. देखिए, मैं तो कभी मिला नहीं हूँ शाह फैजल से. आई हैव नेवर मेट हिम इन माई लाइफ. मैं उसको जानता नहीं हूँ, मगर जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है, जो देखा है, आई वॉज इम्प्रेस्ड दैट दिस इज द मैन हु शुड बी द लीडर ऑफ द कश्मीरी. क्योंकि देखिए, कश्मीरी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली, दे हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी. इन लोगों ने इतना करप्शन किया कि पीपल हैव नो फेथ इन देम. ये मैं सही बात बता रहा हूँ आपको. I agree with you, sir. तो इनसे कोई, जबकि देखिए शाह फैजल के अगेंस्ट कभी आपने एक भी इल्जाम सुना है कि इसने कुछ करप्शन किया? एक भी मैंने तो नहीं सुना. आप ज्यादा जानते होंगे, आप कश्मीर में रह रहे हैं. मैंने नहीं सुना इसके खिलाफ कोई भी इल्जाम कि इसने कोई करप्शन किया. ये एज अ क्लीन इमेज, और बल्कि डॉक्टर था, करता मेडिकल प्रैक्टिस, बहुत पैसा कमाता, आईएएस में रहता तो बड़े आराम से रहता. इसने सब छोड़ छाड़ के फॉर सर्विंग द कश्मीरी पीपल इसने रिजाइन किया आईएएस से. इस वजह से आई वॉज इम्प्रेस्ड. अदरवाइज आई डोंट नो हिम पर्सनली, आई नेवर मेट हिम, आई डोंट नो एक्सेप्ट व्हाट आई रेड ऑन द इंटरनेट.
तो दैट्स व्हाई आई हैव सेड इट। आप लोग को नहीं मेरी बात पसंद आई, ठीक है, आप अपनी में आप कहना कि नहीं ये ऑल्टरनेटिव इलेक्शन क्या होता। देखिए, एक तो मुझे इलेक्शन में कोई फेथ नहीं है। ये इलेक्शन जो होता है मेजोरिटी वोट से होता है ना इलेक्शन। ओके, मेजोरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। मेजोरिटी जो है हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 90% लोग जब वोट देने जाते हैं ये नहीं देखते हैं कि कैंडिडेट अच्छा है, आदमी बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, कुछ नहीं, सीधे सीधे जात बिरादरी पे वोट डाल देते हैं, भेड़ बकरी जैसे, लाइक शीप एंड कैटल। तो 90% पीपल आर लाइक शीप एंड कैटल। उन पे आप ट्रस्ट करिएगा। मुझे आई हैव नो फेथ इन डेमोक्रेसी, ये समझ लीजिए। मुझे डेमोक्रेसी, आई बिलीव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ मॉडर्न माइंडेड लीडर्स हु आर लाइक ऑलमोस्ट डिक्टेटर्स। क्योंकि आम आदमी को तो अकल नहीं, लाइक अ चाइल्ड। कोई बच्चा है 5-6 साल का जो बच्चा है, आप उसको फ्रीडम नहीं देंगे। जो फादर मदर हैव टू टेल दैट चाइल्ड कि ये करना है, ये नहीं करना है। वो तो जब एडल्ट हो जाता है तभी वो उसको आज़ादी मिलती है। तो इसी तरीके से आम जनता जो है हिंदुस्तान में और आपके कश्मीर में, आम जनता तो बच्चे जैसे दिमाग है उसका, 5-6 साल जैसे। अपनी अकल नहीं है, क्या उसके भले में है, क्या उसके फायदे में है, उसको इतनी समझ नहीं है। तो some other person has to decide. I, being a Kashmiri myself, who feels very strongly for Kashmiri, I am a genuine well-wisher of Kashmiri people, and I make no difference between Kashmiri Pandit and Kashmiri Muslim. मैंने तो एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, चिनार फाउंडेशन। आप भी उसमें आइए, हम मैं बना रहा हूँ टू यूनाइट पंडित्स एंड मुस्लिम्स एंड सिख, सब कश्मीरीज एंड इवन नॉन कश्मीरीज को रखेंगे। तो ज्यादा मैं आई एम ए जेन्युइन वेल विशर ऑफ कश्मीरीज। कश्मीरियों के फायदे में मैं कहता हूँ बात, मगर मेरी बात नहीं आपको अच्छी लगती है तो भाई करो भैया, अपना जो तुम ठीक समझो करो, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो आपके भले के लिए कहता हूँ। अगर आपको ऑल्टरनेटिव नहीं, शाह फैसल भैया बताओ कौन आपको, क्या वो जोन चाहिए या यासीन मलिक चाहिए या सैयद अहमद शाह जिलानी चाहिए, या वो अभी मिलिटेंट्स मारे गए रियाज, क्या नायक कोई मिलिटेंट चाहिए, क्या किसको आप लीडर चाहते हैं? मुझे तो भैया शाह फैसल के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। आपको दिखाई दे तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप करिए जो करना है। मगर ये चुनाव में मुझे कोई भरोसा नहीं है। इलेक्शन में तो मेजोरिटी है, मेजोरिटी वोट पे चलता है, और मेजोरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। उनको अकल नहीं है, मेजोरिटी तो भेड़ बकरी जैसे होती है। I understand, sir, and I respect your views. Let me move on to my final question, sir. As Yes. you're aware, Kashmir is under lockdown since 5th of August 2019, and the entire tourism industry and the other business were the major hit in entire Kashmir, entire Jammu and Kashmir. So, do you think Government of India should come up with a special economic package, especially for people of Jammu as well as Kashmir? देखिए, मैं अब सुन लीजिए 2 मिनट मेरी बात जी। मैं कश्मीरियों से कहता हूं कि देखो, तुम अपना ये नारा आजादी का छोड़ के उसके बजाय नारा शुरू करो रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अंडर ए सेक्युलर गवर्नमेंट ऑफ विच कश्मीर विल बी अ पार्ट। ओके, जब ये शुरू कर दोगे तुम्हारा डिमांड की सिक्योरिटी फोर्सेस हटाई जाए, ये सब, आई विल स्टार्ट सपोर्टिंग इट। मगर तुम आजादी करते हो तब तक आई कांट सपोर्ट। तो आप लोग ये अगर करेंगे तो मैं खुद चाहता हूं कि भाई ये सब कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस हटे, लॉकडाउन हटे, more freedom should be granted, but all that is possible only when you people start the slogan reunification of India, Pakistan and Bangladesh under a secular government of which Kashmir will be a part. इसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन, जिसमें वेबसाइट है इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन .weebly.com। ये आप देख लीजिएगा जी। इसका मैं चेयरमैन हूँ, और इसके अलावा ऑफकोर्स चिनार फाउंडेशन, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। चिनार फाउंडेशन पे भी आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाइए, और वो कश्मीर जर्नल एक निकलता है, तो उस पे मेरे कई आर्टिकल्स आए। तो लिहाजा अब कश्मीरी लड़कों को भी अब अकल आनी चाहिए, कब तक बेवकूफ़ी की बात करते चलो। मैंने देखिए, मैं पंडितों को भी मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया और मुस्लिम्स को भी बहुत क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ये एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। मैंने कहा तुम लोग देखिए, जो हो गया सो हो गया। व्हाट हैपेंड टू कश्मीरी पंडित्स वाज वेरी रॉन्ग, एंड व्हाट हैपेंड टू कश्मीरी मुस्लिम्स वाज वेरी रॉन्ग, बट यू हैव टू मूव अहेड।
अब आगे की देखनी है ना। जो अनफॉर्चुनेट था, जो कुछ हुआ, जुल्म हुआ, पंडितों पे भी हुआ, मुसलमानों पे भी हुआ, मगर अब हमको एक होना है। हम लोग एक है, एक ही कल्चर है हम लोग की, कश्मीरी कल्चर, जिसको ऋषि कल्चर भी कहते हैं और सूफी कल्चर भी कहते हैं। आप देखिए ये हम लोग का, तो हम लोग को अब सब एकजुट होना है और आगे का कश्मीर कैसे प्रॉस्परस हो, इस डायरेक्शन में जाना है। और अब ये लॉकडाउन खत्म हो तो ये चिनार फाउंडेशन का बहुत बड़ा हम लोग फंक्शन करने जा रहे हैं यहाँ दिल्ली में। मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये विवेक तनखा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीनियर लॉयर हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और कई लोग हैं। तो हम लोगों ने बहुत हेल्प किया। जो स्टैंडर्ड कश्मीरी थे, इंडिया में भी स्टैंडर्ड थे और फॉरेन कंट्रीज में भी स्टैंडर्ड थे। उनको 90% जो इंडिया में स्टैंडर्ड थे, उनको हम लोगों ने ऑलरेडी इवैक्यूएट कर दिया टू कश्मीर। उसमें आसिफ अब्दुल्ला है जो जनरल सेक्रेटरी चिनार फाउंडेशन, ये भी कश्मीरी लड़का है जी, मैंने अपॉइंट किया, ये दिल्ली में रहता है। इसने बहुत काम किया तो इसको मैंने जनरल सेक्रेटरी बना दिया ऑफ द चिनार फाउंडेशन। तो उसने मुझे भेजा कि 90% जो स्टैंडर्ड कश्मीरी इंडिया में थे, दे हैव बीन इवैक्यूएटेड टू कश्मीर। अच्छा, बहुत कश्मीरी स्टैंडर्ड थे फॉरेन कंट्रीज में, कोई मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कोई कजाकिस्तान में, कहाँ, उनको भी। मेरे एक फ्रेंड है प्रभु दयाल, वो नॉन कश्मीरी है मगर वो, उनको भी हमने चिनार फाउंडेशन में रखा है। तो वो फॉर्मर डिप्लोमेट थे, एम्बेसडर थे कई कंट्रीज के, अब तो रिटायर हो गए। तो उन्होंने बहुत एम्बेसीज को ईमेल वगैरह भेज के बहुत को हेल्प किया। तो हम लोगों ने बहुत कश्मीरियों को हेल्प किया जो स्टैंडर्ड थे ये लॉकडाउन में। Sir, let me come back to my question again. I was talking about जो post abrogation of Article 370 and 35 यहाँ पे हालात हुई और वो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था यहाँ पे लॉकडाउन, विदाउट टेलीफोनी सर्विसेज, विदाउट इंटरनेट एंड विदाउट एनीथिंग एल्स। तो उसमें जो माली नुकसान हुआ लोगों को, यहाँ पे जम्मू के लोगों को भी और कश्मीर के लोगों को भी, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम अप विद अ स्पेशल पैकेज एंड कीपिंग जम्मू एंड कश्मीर इन द वे? देखिए, ये इंटरनेट इमीडिएटली रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट इज नो लॉन्गर एन लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। ट्रू। मुझे कई कश्मीरियों ने मैसेज भेजी कि साहब, अब जैसे कोई फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन भर देता था अपने कंप्यूटर से, अब उसको 20 किलोमीटर जाना पड़ रहा है कोई फॉर्म भरने के लिए। फिर कोई मानिए टिकट बुक करना है, एयर टिकट या ट्रेन टिकट ऑनलाइन कर लेते थे, या कहीं ईमेल भेजना है। तो ये इंटरनेट इज अ नेसेसिटी नाउडेज। आपको एक दिन भी इफ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ इंटरनेट, आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। और ये कितने 6 महीने 8 महीने तक people of Kashmir have been deprived of this 4G internet, so it should be immediately restored. And what about economy? जो यहाँ पे इकोनॉमी हिट हुई, what about that, sir? अरे भैया, मैंने बताया ना कि इकोनॉमी भी ये करना चाहिए। अब देखिए इकोनॉमी क्या है, कश्मीर में मैसिव हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। ट्रू। ज्यादा कोई फैक्ट्रीज तो है, मिल इंडस्ट्री तो है नहीं ज्यादा। दे आर, आप बताइए, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। No, you're right, sir. You're right, sir. Massive, ये handicraft industry है, ये dependent on horticulture as well as the handicraft industry. Handicraft industry में बहुत कारपेट्स और शॉल्स, पश्मीना, ये बहुत, यानी पूरे हिंदुस्तान में आप किसी भी शहर में चले जाइए, डीप साउथ आप कन्याकुमारी तक चले जाइए, वहाँ भी कश्मीरियों की दुकानें मिलेंगी जो अपना माल लाते हैं कश्मीर से, शॉल, कारपेट वगैरह वहाँ बेचते हैं। और ऐसे सैकड़ों शहर हैं हिंदुस्तान में, हर शहर में कश्मीरियों की दुकानें हैं। दिल्ली में कम से कम 2 दर्जन दुकानें होंगी कश्मीरियों की। अब वो लॉकडाउन की वजह से भी इट हैज सफर्ड, क्योंकि वो ट्रैवल बंद कर दिया गया है। तो ये इमीडिएटली हटना चाहिए। देखिए, मैं तो वेलविशर हूँ, मैं तो भला चाहता हूँ ना, आई एम ऑन योर साइड। मैं आपका दुश्मन नहीं, मैं आपके तरफ हूँ। मैं आपका भला चाहता हूँ भाई। यही मगर यह है कि समटाइम मैं आप लोगों को डांटता भी रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का दिमाग बच्चे जैसा दिमाग है। तो जैसे फादर को कभी कभी बच्चे को करेक्ट करना पड़ता है, वैसे मैं आप लोगों को कभी कभी करेक्ट। मैं 74 साल का हूँ। आपकी क्या उम्र है? आई एम 29 सर। 29 है, तो आप समझिए, आप मेरे 1/3 आपके ग्रैंडफादर का एज का हूँ मैं।
तो आपको तो मैं डांट सकता हूँ ना। ट्रू सर। आप जैसे देखिए, मैंने कई कश्मीरी पंडितों से भी मेरे बड़े डिस्कशन हुए। वो बहुत कश्मीरी पंडित कहते हैं मुसलमानों ने हम लोगों को मार पीट के भगा दिया। मैंने कहा देखो, ये जो हुआ था बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ था, जो एक्सोडस, मगर ये हुआ था 1990 अर्ली 1990s में। तब से 25 साल हो गए, और इस 25 साल में एक न्यू जनरेशन, ये जो नया जो यूथ कश्मीरी मुस्लिम यूथ है, ये तो शायद उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था या 2-3 साल का था। तो दे कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर व्हाट हैपेंड इन द 1990s। जैसे आज के जर्मन्स को आप थोड़ी ब्लेम कर सकते हैं कि जो जुल्म नाजीज ने किया था जूस के साथ, तो आज के जर्मन तो पैदा भी नहीं हुए थे उस जमाने में। तो यू कैन नॉट ब्लेम द जर्मन्स ऑफ टुडे फॉर व्हाट एट्रोसिटीज वर कमिटेड बाय नाजीज ऑन द जूस। तो इसी तरह जो पंडितों पे जुल्म हुआ, आज के कश्मीरी यूथ को आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो तो पैदा ही नहीं हुए थे। और मोरोवर ये पुरानी बात हो गई। अब देखिए आगे बढ़ना है, वी हैव टू मूव अहेड। मैंने कई कश्मीरी पंडितों से, मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ, क्योंकि उनसे भी मेरे बड़े झगड़े होते हैं। उनको समझाना पड़ता है कि तुम लोग देखो, पुरानी बात है, भूलो, हम लोग को आगे का सोचना है। और कश्मीरी मुस्लिम लोग, हम दोनों का खून एक है, डीएनए एक है, वी हैव टू यूनाइट। और हम लोग की कल्चर एक है, जो सूफी कल्चर है, ऋषि कल्चर है। वी आर एक्चुअली, ये तो अनफॉर्चुनेट हुआ जो डेवलपमेंट हुए, बट वी हैव टू नाउ थिंक अहेड, not keep crying over spilt milk. तो लिहाजा मैं कश्मीरी पंडितों को भी डांटता रहता हूँ, कश्मीरी मुस्लिम्स को भी डांटता रहता हूँ। तो मैं I understand, sir, and you are absolutely right. You know, we have to move. Thank you so much, Mr. Karju, for your time. It was really an honor to have you on my podcast, and I hope to see you again in future. Thank you. My pleasure. Alright guys, that's all from today's episode. We will be back with another one soon. And hey, you can also support my podcast by logging on to patreon.com/mmp. Thank you so much, and you have a great time ahead. This is your host Muzammil Maqbool signing off from Plain Talk.